Hi, my name is Shahid Mohideen from Department of Computer Science and Engineering. Today, I'll be discussing decision making and looping in Java programming. So let us start. First of all, we'll see what is the need or what is the decision making. Then we'll see what is the need of looping in case of Java programming or in any other programming language. First, decision making, as the name suggests, it means कि भाई जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम रहता है इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन केस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द नॉर्मल प्रोग्राम जो है उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है दैट इज डन इन अ सीक्वेंशियल मैनर. सो दैट मीन्स इफ वी हैव से सपोज 5 to 10 statements in our program, say suppose if I have statement 1, statement 2 and statement 3 and so on, number of statements in program. In normal situation, the execution will be that statement 1 will get executed first, then statement 2 and then statement 3 and so on. But in case of actual programming sequence, we may have some situations where we may have to skip some statements during the execution, or we may have to repeat certain statements during the execution of a program. So for that case, we need to take some sort of a decision whether we have to skip some statements or we have to repeat certain statements. That's why the name is decision making and looping. So that means if the situation demands that some of the statements in our program, they need to be repeated a fixed number of times. In that case, that means I have a solution, or I may write, if say suppose these 3 statements are to be repeated, say suppose 5 times or 10 times in my program, in that case what I can do, I may do situation like then again S1, S2, S3 and so on to say suppose 5 times. That means these 3 statements I have to write 5 times. But if I write these 5 times, that means I have to write 15 lines of code or 15 statements. To overcome this redundancy of the statements, Java provides us with a concept called as looping. It states कि अगर भाई आपको कुछ स्टेटमेंट्स जो है रिपीट करानी है तो आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. एंड इन केस ऑफ लूपिंग व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ओनली S1, S2 एंड S3 विद इन सर्टेन ब्लॉक. आई विल डिस्कस इन अ बिट कि इसका सिंटेक्स वगैरह क्या होगा. तो जितनी बार भी हमें फिर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होगा गिविंग सर्टेन कंडीशंस वगैरह, ठीक है, हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को उतनी बार रिपीट करा सकते हैं. अब क्योंकि इसको हमने कुछ स्टेटमेंट्स को हमने बार बार रिपीट कराया, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज लूपिंग. ठीक, अब इस लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी एग्जीक्यूशन के लिए, हमें इसे एग्जीक्यूट कराना भी है या नहीं, कितनी बार कराना है, दैट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ ए डिसीजन मेकिंग और दैट इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट. सो फंडामेंटली वी कैन से दैट इन केस ऑफ जावा, if we are using looping concept, we can say divided into 2 steps. One is called as control statement and next is called as body of the loop. Now this control statement will see कि भाई हमारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशंस हम देखेंगे ये जो हमारे पास लूप है या इसकी जो बॉडी है कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक, सो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट, अगेन दिस कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, से दैट मींस दिस कंट्रोल स्टेटमेंट विल बी ओवर हियर, और इट मे बी एट द एंड ऑफ द लूप, डिपेंडिंग ऑन ये कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास कहां है. सो इन दैट सिचुएशन वी मे हैव 2 types of loops. One is called as entry control loop and second one is called as exit control loop. Exit control means at the end of the loop. So in entry control loop we may have first condition then body. In case of exit control we'll be having block or body of the loop, then we'll be having condition or control statement. ठीक है, so these are the broadly classifications of
loops in case of Java: entry control and exit control. Now this entry control is further classified into two types of loops. That means in case of, if we have to categorize this entry control loop, we may say that we have while and we have for. These are the two types of loops in case of entry control, and in case of exit control, the loop construct that is used is called as do while. Now ये हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अब तीन टाइप्स के लूप आ गए. अगर हम कैटेगराइज करेंगे इनको, सो वी कैन से नंबर 1 इज while, नंबर 2 इज for एंड नंबर 3 इज और डू while. ठीक, अब हम देखेंगे बेसिकली कि चाहे डू हो, चाहे एंट्री कंट्रोल लूप हो, चाहे एग्जिट कंट्रोल लूप हो, फॉर हो, while हो, डू while हो, देयर आर सम क्राइटेरियाज, और वी कैन से एज पर द सिंटैक्स देयर आर सम नेसेसिटीज दैट आर टू बी देयर इन एनी सॉर्ट ऑफ लूप. वो क्या चीजें हैं? ठीक है, सो वी विल सी नाउ. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स और एसेंशियल्स जो हमारे पास किसी भी लूप में होनी ही होनी चाहिए. तो जब भी हम लूप बनाएंगे या लूप यूज करेंगे, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज 4 जो है नेसेसरी स्टेप्स वी फॉलो इन अवर लूप्स. सो उनमें से क्या है? नंबर फर्स्ट इज दैट वी हैव टू सेट द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज सेटिंग द वेरिएबल, सेटिंग, एंड वी हैव टू इनिशियलाइज इट. इनिशियलाइजेशन किस लिए जरूरत है? बिकॉज जब भी हमें लूप शुरू करना है, जब भी हमें काम शुरू करना है, सो उसको मुझे पहले वैल्यू देना है. ठीक है, कि मुझे इसे किस नंबर से स्टार्ट करना है और कहां तक. ठीक है, दैट मींस एंड. तो फर्स्ट हमें बिगिनिंग भी तो बतानी है ना. तो बिगिनिंग हम कैसे बताएंगे? हम वेरिएबल को सेट करते हैं एंड वी इनिशियलाइज द वेरिएबल. ठीक. नंबर सेकेंड इज दैट वी प्रोवाइड द टेस्ट कंडीशन. Say suppose the first step is that मैंने कहा कि मैंने इनिशियलाइज किया. If I am initializing something, so say suppose I have set the variable as int I equivalent to say suppose 5. That means I am doing both steps. I am setting or declaring the variable and I am giving it some sort of an initial value which is 5. In the next step is test condition. Test condition means कि भाई मुझे अब ये टेस्ट करना है ना. से सपोज आई हैव सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट कंडीशन wherein I have written that I should be less than say suppose 4, and this is my test condition. In this case here the initial value for I is 5. Is 5 less than 4? No. Later on we will see कि इसके बदले क्या होगा. So that means जो वेरिएबल है इनिशियलाइज किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस वेरिएबल को मुझे क्या करना है? आई हैव टू सेट द कंडीशंस फॉर दैट टू सी वेदर मेरा जो लूप होगा वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. ठीक है. नंबर थर्ड इज एग्जीक्यूशन. किसकी एग्जीक्यूशन? बॉडी. एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी. अब मैं सिंपली लिखूंगा और एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन at the step second is true or it is false. If it is true, then only the body of the loop will be executed. If the step 2 that is condition, if it is false, then we may have a situation wherein the execution of a body will not occur. Okay, it will skip the execution or body of the loop at that time. And number 4 step is the fourth step is in collaboration with the third step, that is if the execution of a body takes place. Since मुझे हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो है लूप फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और इनिशियली मैंने इसे कुछ वैल्यू दिया है और अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि इसका कुछ फाइनल वैल्यू भी आ जाए. और वो फाइनल वैल्यू कब होगा? जब मैं इस वेरिएबल को जो मैंने यहां सेट किया हुआ है उसे हर स्टेप के बाद इंक्रीमेंट या बढ़ाता हूं या घटाता हूं, सो दैट जो मेरा फाइनल वैल्यू होगा ये उस तक पहुंच जाए. अगर मेरा फाइनल वैल्यू से सपोज इनिशियल वैल्यू 10 है, इफ से सपोज फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग फॉर द टाइम बीइंग आई एम राइटिंग फाइनल वैल्यू मेरा 10 है, दैट मींस आई हैव टू इंक्रीज दिस वैल्यू
एट एवरी स्टेप, जब भी बॉडी ऑफ जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और सो दैट फाइनल वैल्यू मेरा आई पे कहां पहुंचे 10. इन केस उल्टा भी हो सकता है, से सपोज इफ द फाइनल वैल्यू इज 0, सो दैट मीन इन दैट केस आई हैव टू डिक्रीमेंट दिस, आई हैव टू इसमें इंक्रीमेंट करना है, इसमें मुझे डिक्रीमेंट करना है या घटाना है इस वैल्यू को, सो दैट इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा 0 होगा. दैट इज स्टेप 4, दैट आई हैव टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन नीड. किसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है? जो मेरे पास वेरिएबल है जो मैंने पहले स्टेप में सेट किया हुआ था. तो ये तो 4 चीजें हैं, ठीक है. वी हैव टू सी कि ये 4 जो चीजें हैं या जो 4 चीजें हैं ये हर एक लूप में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, ठीक. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी द बेसिक और द मोस्टली यूज्ड जो है प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रेंट या लूपिंग कॉन्स्ट्रेंट, दैट इज अवर फॉर लूप. द सिंटेक्स फॉर द फॉर लूप इज we have to write for, then we have initialization, then followed by semicolon, then we have test condition, and this test condition is to be followed by increment or decrement. Then we will close this. ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर ही लिखनी है. And after that we'll have the body of the loop. No doubt, जहां मैंने for लिखा इसके ऊपर, यहां we may have many other statements of the program. It's not necessary for से ही start होगा. So we may have statements over here also the program. और इस for के बाद भी मेरे पास और भी statements होंगी, और भी programming lines होंगी जिनको execute होना है. We usually called this part as rest of program. So this is the simplest of the syntax for the for loop. Now we will see जो हमने अभी 4 चीजें देखी वो कहां फॉलो हो रही है in case of for loop. The first step is that we have initialization. Now, initialization means that I have to give an initial value to the variable. अब वो मैं कैसे दे सकता हूं? वो मैं ऐसे दे सकता हूं, मैंने लिखा int I equal to 0, but I am not declaring I और here. अगर मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है देन ठीक है. अगर मैंने आई कभी यूज ही नहीं किया अभी तक अपने प्रोग्राम में, देन आई हैव टू राइट ओवर हियर से सपोज इंट आई इक्वल टू 0, देन पुट सेमीकोलन, देन आई हैव टू गिव टेस्ट कंडीशन कि 0 से तो इसको स्टार्ट करना है, लेकिन व्हाट इज द फाइनल वैल्यू जहां तक इस लूप को एग्जीक्यूट होना है. से सपोज आई एम सेइंग आई इज लेस देन और इक्वल टू 10. दिस इज माई टेस्ट कंडीशन. एंड सिंस जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज लेस देन द फाइनल वैल्यू, दैट मीन मुझे हर बार क्या है अपने वेरिएबल को बढ़ाना है सो दैट मैं फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाऊं. सो इन दिस केस आई विल बी यूजिंग इंक्रीमेंट, सो आई विल बी यूजिंग आई प्लस प्लस फॉर द इंक्रीमेंट, और मैं इसे क्लोज करूंगा. सो दिस विल बी और दीज विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर द 3 थिंग्स दैट आर देयर इन द फॉर लूप. और आपको साथ साथ ही में यह याद रखना है कि दीज initialization, test condition and increment decrement, these are to be separated by using the semicolon. If the semicolon is missing, you will see the syntax error will be generated. ठीक, तो ये तो था simplest of the for. इसी तरह हमारे पास जो है for के दूसरे हमारे पास variants भी आ सकते हैं, दूसरे हम यूज भी कर सकते हैं इसमें. से सपोज फॉर एग्जांपल ये जो इनिशियलाइजेशन है या इंक्रीमेंट वगैरह है ये विद इन हम बॉडी भी कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल ठीक, ये तो फर्स्ट ऑफ और बेसिक जो हम फॉर यूज करते हैं उसके लिए है. समटाइम्स वी मे हैव अ सिचुएशन वेयर इन we may have something like this followed by semicolon, then say suppose I equal to 10, then semicolon. Here we can see कि हमारे पास for के अंदर टेस्ट कंडीशन ही दी हुई है, बाकी चीजें नहीं दी है, बट मेक श्योर those first and the third जो हमारे पास इसका वैल्यू था या जो इसके पोर्शन से वो हमने ब्लैंक छोड़ दिए यहाँ पे, एंड सेपरेटेड बाय सेमीकोलन अगेन. यहाँ पे भी हमारे पास सेमीकोलन है, यहाँ पर भी सेमीकोलन है. दीज सेमीकोलन्स आर टू बी देयर. अगर हमने सेमीकोलन मिस कर दिया देन इट विल जनरेट एन एरर.
ठीक है। सो एरर से या जो इसका बेसिक सिंटेक्स है उसके लिए हमें सेमीकोलन देना है। हाँ, वी कैन लेफ्ट देम ब्लैंक, हम इन पोर्शंस को ब्लैंक रख सकते हैं, लेकिन ब्लैंक रखने का ये मतलब नहीं है कि हमें ये कहीं इनिशियलाइज ही नहीं करना है। जी बिल्कुल करना है। इसका मतलब है जो मुझे इनिशियलाइज करना था वेरिएबल, आई हैव डन दैट वेल बिफोर फॉर। जहां मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं उससे पहले मैंने कहीं इसे ऑलरेडी डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया हुआ है अपने प्रोग्राम में, ठीक। तो ऊपर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है इंट i इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो मुझे इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है ये भी मुझे मेंशन करना ही करना है। वो कहां मैं कर रहा हूं, से इफ आई हैव स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद मैं लिख सकता हूं i प्लस प्लस, और आई में राइट ऑल्सो i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये दोनों जो चीजें हैं इनका सेम ही एग्जीक्यूशन होगा, सेम ही पर्पज होगा, सेम ही रिजल्ट होता है, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे। नाउ विल अगेन सी कि हमारे पास जो है चारों की चारों चीजें वो होनी ही होनी चाहिए हमारे पास। तो दिस इज फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा था, सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल आ गया हमारे पास। देन वी हैव टेस्ट कंडीशन आ गया। सो लेट मी गिव ए नंबर टू देम, दिस इज फर्स्ट नंबर, this is second number, then third was that we have to execute the statements of the loop, so statements of the loop over there, this is number 3, and finally depending on till this, depending on कि हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, that is over in this case over here। so ये चारों की चारों चीजें हमने यहाँ देखी फॉर में आ गई, ठीक है। इसी तरह से ये जो फॉर लूप है इसमें नो डाउट हमने यहाँ पे जो है ब्लैंक छोड़ा, यही हमारे पास जो है these ब्लैंक पोर्शंस जो हमारे पास इंक्रीमेंट या हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, these can be compound expressions also। compound expressions means it's not necessary it will be int i equal to 0, it may be something like I is equal to m plus 2 divided by say suppose 2 for example, then semicolon, or if I have to declare it I can write it in this way also, int i equal to, that means this is a compound expression। Similarly we may have more than one initialization within this first portion, that means अभी तक मैंने लिखा int i equal to 0, then मैंने semicolon पुट किया, मैं इसी पोर्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं int i equal to 0, अगर मेरे पास कोई और वेरिएबल है int b equal to 2, then followed by semicolon। so multiple initialization and settings भी हो सकती है हमारे पास, हमने देखा कंपाउंड एक्सप्रेशन भी हो सकती है इन केस ऑफ फर्स्ट पोर्शन। सिमिलरली द सेम कैन बी डन विद द इंक्रीमेंट पोर्शन, दैट इज द थर्ड पोर्शन ऑफ द फॉर। वहां पर भी हम मल्टीपल रख सकते हैं स्टेटमेंट्स या कंपाउंड स्टेटमेंट्स वगैरह दे सकते हैं फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो नंबर सेकंड वाला है दैट इज टेस्ट कंडीशन, देयर वी हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। क्यों? क्योंकि यही टेस्ट कंडीशन हमारे जो लूप को है इट मेक्स इट फाइनाइट, दैट मीन्स जहां तक ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार लूप चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी उस टाइम पे क्या है, इट विल स्किप दिस फॉर लूप, इसकी बॉडी को स्किप करके जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट कराएगा। अब अगर मैंने गलती कर दी कहीं पे इस टेस्ट कंडीशन में, देन इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, ये जो है कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, हमेशा ट्रू रहेगी। इन दैट केस प्रोग्राम विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए दैट्स वाई हमने यहां टेस्ट कंडीशन रखी। हाँ, हमारे पास ऐसा भी लूप हो सकता है जहां पे फर्स्ट जो पोर्शन है इट इज ब्लैंक, सेकंड इज ब्लैंक, थर्ड इज ऑल्सो ब्लैंक। इन दैट केस अगेन हमारा जो लूप होगा इट विल बिकम इनफाइनाइट और ये हमेशा चलता रहेगा, एंड वी हैव टू फोर्सबली देन टर्मिनेट इट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, so this was basic about for loop. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Thank you.